गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट कराची। तो आज जो हमारी लीगल चर्चा है वो ईडी सेक्स क्लैरिटी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन रोल ऑफ हाई कोर्ट्स इन कोल स्कैम केसेस। ये 13 अगस्त 2024 को पब्लिश हुआ था। टू टॉप कोर्ट्स जजमेंट्स वेयर्ड हाई कोर्ट्स रूल। A decade after Supreme Court's cancelled illegal allotment of coal blocks, mostly by UPA government, the Enforcement Directorate on Monday sought clarity from Apex Court on its decisions, bearing High Court from entertaining accused appears against the trial court decisions. Friends, हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। Additional Solicitor General's Aishwarya Bhatti told a bench of Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pardiwala and Manoj Mishra that three-judge bench in their ruling of July 2014 and July 2017 had barred accused from moving High Court against proceedings before the special CBI judge to expedite the trial. Bhatti drew the court's attentions to two orders passed by a two-judge bench led by Justice A.S. Okha asking coal scams accused to move the jurisdictional high court for relief whilst refusing to entertain their plea. The three judges benches of the Supreme Court in their judgments of 2014 and 2017 had said if any accused wanted to challenge an order of the trial court, then they would have to move the Supreme Court directly. In doing so, the Supreme Court had followed an earlier judgment that had cancelled illegal allocations of the 2G spectrums to private parties on first come first served basis. The intentions of the court was to prevent accused in both 2G scams and coal scams from impeding the trial process by moving the High Court and had kept only the forum of Supreme Court open for them. Appearing for some accused, senior advocates Mukul Rohtagi said the right of the accused who are presumed innocent till pronounced guilty could not be constricted by barring them from moving the jurisdictional high court under sections 482 of the Criminal Procedure Code to appeal against order of the trial court, though the Supreme Court had taken care to stop accused from delaying trial by moving the top court. The stay it granted on April 1st, 2015 to the summons issued by trial court to former PM Manmohan Singh in the alleged irregular allocations of the Talavera 2 coal block in Odisha to Hindalco in 2005 has not come up for hearing even once in the last nearly 1 decade. On April 1st, 2015, the Supreme Court had stayed the summons and admitted the appeals filed by Singh and 5 other accused. The Supreme Court had said, since certain important substantial question of law as well as the conditional validity of sections 13 subsections 1d and 3 clause 3 of the Preventions of Corruptions Act 1988, जिसको हम लोग PC Act के नाम से जानते हैं, are raised
in the instant petitions, we are the view that these matters requires examinations. The Supreme Court had also stated further proceeding in the case before the trial court. The bench posted the matter for further hearing on August 19 and said it would have to read the two judgments in the coal scam cases and the subsequent order of Justice Oka bench and then hear the parties to decide whether any clarifications is needed. तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल हम लोग अभी स्टडी किए, इसमें मुख्य बातें दो तीन बातें हैं। यहाँ पे जो हमारे मुकुल रोहतगी साहब ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एलिगेशंस लगाने मात्र से उसका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको क्या कहते हैं, उसको जो आरोप तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक उसको सजाप्ता ना हो जाए, उसके ऊपर दोष सिद्ध ना हो जाए, उसको दोषी मानना गलत होगा। ये हमारे जो एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस है या लीगल हमारे क्या डॉक्ट्रिन है, इसको हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरह हमारे डिस्कशंस में जो पीसी एक्ट के सेक्शन 13(1)(d) एंड 3 की बात आया, तो पहले हमारे था पीसी एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अभी हमारी उसी की जगह पे आपका पीएमएलए आया जो ईडी हैंडल करते हैं। लेकिन पहले क्या, यहाँ पे इस डिस्कशन में एक बात आया जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ए क्वेश्चन दैट इज डिबेटेबल एंड हैज material impact on the outcome of the cases. तो फ्रेंड्स के मटेरियल को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एक मटेरियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और वो डिबेटेबल होगा जिसका मटेरियल इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द आउटकम ऑफ द केसेस, किसी केस के आउटकम में, दैट इज द रिजल्ट, डिसीजंस में मटेरियल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट होगा और डायरेक्टली अफेक्ट द राइट ऑफ द पार्टीज। ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा राइट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट बी फाइनली, और ऐसा क्वेश्चन जिसको इसके पहले जो है कोई कंसिडरेशन में नहीं लाया गया था, उस क्वेश्चन पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो दीज आर द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स, इसको और थोड़ा समझने के लिए हम लोग दो टर्म की यूज किए, वन इज द इम्पैक्ट एंड अनदर इज द आउटकम। तो इसके साथ हम थोड़ा सा एक और जुड़ना चाहते हैं, दैट इज द इनपुट। तो इसको अगर हम लोग एकदम लेमैन की तरह समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा होगा। तो इनपुट, आउटपुट एंड आउटकम, अगर मान लीजिए आप एक खेत में 10 जो है चना का बीजा जो है डाले, तो डेफिनेटली 10 जब चना का बीजा डाले तो दैट इज, जो बीजा डाले दैट इज इनपुट, या उसमें खाद डाले और कोई चीज डाले तो इसको हम लोग कहेंगे इनपुट, आप इनपुट। अब उस 10 चना का बीजा में से हो सकता है कि 8 निकल के आया, 2 तो सड़ गया। तो जो 8 निकल के आया, 8, तो दैट इज द, क्या कहते हैं आप, एक प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद 8 जो चना का छोटे छोटे पौधे निकल के आए, उस पौधे में सेवरल ब्रांचेस आया, ब्रांचेस के आने के बाद वो फल आया, फल आने के बाद जो है पक गया, पकने के बाद जो आप फिर हार्वेस्ट किए, तो उस 8 चना के जगह में आप मान लीजिए टोटल 800 चना के दाना जो है आपको मिला, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब जो है क्या कहते हैं, सॉरी, दैट इज कॉल्ड आउटकम। लेकिन जो 10 चना के पौधे में से, बीजा में से 8 निकल के आए, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो आउटपुट के बाद आउटकम, हम एक टर्म छोड़ दिए थे, और आउटकम के बाद जो है इसके इम्पैक्ट। अब हमने कहा एक छोटा सा चीज कि एक आपने 8 दाना डाले, तो और उनमें अल्टीमेटली 800 पाए, लेकिन हो सकता है कि आप 500 एकड़ जमीन में वही आपके चना का जो है खेती किए, तो 500 एकड़ जमीन में
आपको कितना मैट्रिक टन जो है आपको उपज आया, और जिसकी वजह से आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत के जो एक क्या कहते हैं पॉवर्टी जो था, उस पॉवर्टी को आप इरेडिकेट करने के लिए आप सफल हुए। अगर इस तरह का चीजें है कि आपके इलाका में, आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में पॉवर्टी था, आपके इस कल्टीवेशन, आपके इस रेवोल्यूशन से पूरे ब्लॉक की पॉवर्टी जो है इरेडिक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट। तो 4 टर्म जो है, इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट। तो उसी तरह हमारे इस लॉ में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली हमारे जो केस के जो रिजल्ट आए उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आज के डिस्कशंस में हम लोग ED seeks clarity from Supreme Court on role of High Court in coal scam cases, इसको समझने की कोशिश किए, डिस्कस किए। होप सो कि आपकी डिस्कशन अच्छा लगा होगा। फिर इसी तरह नया वीडियो में हाजिर होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो। जय हिंद।